Hello, good evening all. My name is Arvind. I have done my bachelor's degree in civil engineering from IIT Kanpur, and I'm currently working as an assistant executive engineer in Roads and Buildings Department of Andhra Pradesh. I've secured an All India rank of 41 in GATE 2021 and an All India rank of 91 in GATE 2020, and I've cracked the APPSC examination, which I'm currently enrolled in, and I'm selected for the interview for ESC 2021. Please join us on our Telegram channel, Unacademy, MyGate CE, to avail the preparatory material for the GATE exam and to get notified for the upcoming video lectures on YouTube. Here are our Unacademy subscriptions. The first one is Plus subscription, in which you will have access to the live classes, which will be taught by the top educators, and there will be weekly tests where you can check your level of understanding regarding the classes you have attended, and the courses were designed in a well-structured manner in a motto to cover the subject from basics to the in-depth analysis. And there will be crash courses in which the subject will be taught in a very brief manner. These were designed for the purpose of revision before the competitive examinations. And there will be rank improvement batch where you will be solving many number of questions to gain the grip in the any competitive exam, and you can avail this at an unlimited access, which means you can access the live class as many times as you want. After the class was completed, you can revisit the recorded session and you can replay it as many times as you can. And if you move to the bigger picture, there is Iconic subscription, in which you will get a personal coach with whom you can have one-on-one interaction regarding your preparation strategy, and he will be your study planner. Customize it, you can get your customized study plan and track your performance. And there will be study booster sessions, receive essential guidelines via regular workshops, and there will be personalized test analysis to get in-depth analysis of test by section and question wise and all. And there will be preparatory study material, specialized notes and practice sets for the Iconic subscription users, and there will be dedicated doubt clearing sessions from the top educators. And here are our special class features. The first thing is you will be having interactive live classes. Attend the live class, participate in the live chat, and get your doubts cleared all during the class itself. And polls for the learners, response to the polls for a better understanding of the topic. And there will be a raise a hand option. By pressing it, you can uh, enable the educator to answer your queries in the live class itself, so that you don't have to hesitate clearing your sessions. And by pressing the bell notification, you can get the updates regarding the upcoming lectures and all. And there will be lecture notes. You can download the lecture notes and get access to the recorded sessions of live classes, revisit the important topics whenever you need it. You can attend the class from anywhere and anytime, and check out our brand new updates on Unacademy Ask feature platform for GATE and ESC. These were the new things which were included. The first one is you can upload up to 3 doubts at a go. That is, you can post 2 additional doubts while your first was being cleared by the instructor. And next one is you can get your solutions in your preferred language, that is either in Hindi, English, or combined of both. How do you do how to do it? Just simply click the question which you are finding difficulty in solving, then copy the image, then submit it. And regarding the live mentoring product, there is one-on-one live mentoring with the Iconic subscription, which we have discussed earlier. And in this, you can experience the personalized learning with our expert mentors. You can discuss your doubts, clarify your concepts, and enhance your exam strategy within a finger click. And here are the subscription packages from Unacademy. The first one is the Plus subscription. If you are going for 12 months, you can avail it for 2,704 rupees per month. Or if you are preferring for Iconic subscription, if you get into the 12-month package, you can avail it for 4,704 rupees per month. And if you go for the 24 months package, that is 2 years program, you can avail it for 1,967 rupees per month. And for Iconic, you can avail it for 3,467 rupees per month. For the students who are thinking about preparing for the GATE and ESA examination,
from the college, this 2-year plan will be very helpful so that you can cover the syllabus in a uniform pace. That is, आप daily 1-2 घंटे भी आप इसको टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो डेली, तो आपका सिलेबस 13-14 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप थर्ड ईयर में, तो आपका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा. एंड आपको रिवीजन के लिए भी 6 महीने बचेंगे सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद. सो आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी. पहले अटेम्प्ट में ही निकलने का चांस अच्छा होता है. एंड प्लीज़ यूज़ द कोड ARVD10 टू अवेल द 10% ऑफर ऑन द अबव प्राइजेस. And there are already my special classes going on the preparation strategy for GATE 2022, which will be available on the Unacademy platform at a free of cost. And there is a new batch which has been commenced just 2 weeks before regarding GATE and ESC 2023, not 22. This will be taught in a bilingual language, that is both English and Hindi. This is for civil engineering, and this is batch 2. These were the top educators who will be teaching the syllabus. And this has started from 15 December, that is 2 weeks before. And this is started with the strength of material subject by Shobhit Srivastava sir. And next, one more important announcement. There is All India Mock Test Series for GATE 2022, which will be starting from January 2nd and goes on till January 30. That is, there will be a grand test on the entire syllabus of the grade on every Sunday starting from January 2nd to January 30. तो ये आपको पूरा 5 टेस्ट में कवर करेंगे पूरा आपकी गेट रिवीजन को. तो जब आप मैं मानता हूँ कि आप सबका सिलेबस जो है ख़त्म हो गया होगा. जो भी आप कुछ बैच में एनरोल हुआ है अब तक, तो सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए. जनवरी में आने वाला है कुछ दिनों में. सो आई होप यू ऑल completed the classes and syllabus एटलीस्ट वंस. एक बार मतलब आप एक बार तो पढ़ लिया होगा. एंड आपको अभी क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है. रिवीजन का होता है, रिवीजन कैसे करते हैं उसका पहला स्टेप होता है आपके नोट्स, क्लास नोट्स जो है उसको थरोली एक बार आपको रीडिंग देना है. एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेना उसका. आप उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए नोट्स को. मतलब आप जब रिवीजन कर रहे हो को आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना आपको पहली बार पढ़ने में लगता है. तो आप एक बार थरोली ग्लैंस करने के बाद आप जो भी फार्मूलास या कुछ थ्योरी पॉइंट्स जो है उनको एक शॉर्ट नोट्स लगा लीजिए और हर एक सब्जेक्ट का सिक्वेंशियल बनाते जाइए. एंड बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपने नोट्स का थ्योरी जो है वो पढ़ लिया एंड फार्मूला भी आपने ग्लैंस कर लिया. उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो ये दोनों मेन स्टेप्स होता है. एंड नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज. ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेप होता है टेस्ट सीरीज के थ्रू. इसमें आपको अंदाज़ा लगता है कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हो आप कुछ अनइंटेंशनल मिस्टेक्स कर लेते हो. आपको पता नहीं होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस टाइम पे आपको नहीं दिखता है ये सब मिस्टेक्स, क्योंकि आपके पीछे आंसर दिखता है. तो आप अपने आप को तुरंत वेरीफाई कर देते हो, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती किया था, बस यही करना है. लेकिन आप बाद में वो स्टेप भूल जाते हो. लेकिन जब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि अगर आप हल्का सा भी गलती किया, आंसर आपका गलत आ गया, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे. चाहे कि आप 90% कॉन्सेप्ट आपको आता है या बस 10% कॉन्सेप्ट आपको आता है. ओके, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका अंदाज़ा लगता है कि कहाँ कहाँ पे आप वीक है. एंड आप सिली मिस्टेक जो करता रहता है वो कहाँ कहाँ अवॉइड करना है. ओके, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं. एक रीज़न होता है टाइम मैनेजमेंट का. ओके, जब लोग पेपर सॉल्व करते हो मोस्ट ऑफ द पीपल विल सॉल्व इन दिस सीक्वेंशियल मैनर. तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं एंड आगे बढ़ते जाते हैं 65 तक. तो वो लोग मेनली ये लोग क्या करते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि थोड़ा मतलब करने लायक क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस जो होता है वो लेंदी होता है. लेकिन लोग उसमें फंस जाके करते रहेंगे. तो एवरेज टाइम से ज़्यादा 2 गुना सा टाइम लगेगा आपको करने में नॉर्मल क्वेश्चन से एवरेज कंपेयर किया तो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो. एंड वो लोग एंड पहुँचते पहुँचते उनके पास देखते हैं कि टाइम कम होता है. जो आखिरी में बचा हुआ क्वेश्चन होता है उसमें वो लोग जल्दी जल्दी करने में लग जाते हैं. सो वहाँ पे आपको
कैलकुलेशन मिस्टेक्स या क्वेश्चन आप सही से नहीं पढ़ते हो, उसकी वजह से आपकी अ, आसानी से क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आप कर सकते हो अच्छे खासे से, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। सो ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले जब आप टेस्ट सीरीज देते हो उसमें आपको कुछ टाइप की मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हो। मान लो कि किसी फार्मूला में आपके यूनिट्स जो है वो करेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं, एंड नेक्स्ट कुछ कुछ फार्मूलाज में डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में डाल रहे हैं, न्यूमरेटर का टर्म डिनोमिनेटर में डाल रहे हैं, वो कन्फ्यूजन है। सो वो सब रेक्टिफाई हो जाएंगे। एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज में आपको एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो भी एक क्रिटिकल चीज़ होता है रिविजन के साथ साथ। मतलब इसके थ्रू क्या होता है, जब आप जितना भी तैयारी करके जाते हो आप एग्ज़ाम देने में, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो जितना भी आप मेहनत किए हो, टाइम इन्वेस्ट किए हो उस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, नॉलेज सीखने के लिए, तो आपकी जो भी नॉलेज है उसको 100% प्रेजेंट करना है आपको। और उसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपके नॉलेज से आया है उसको आप 100% करके आना है, क्योंकि टाइम की वजह से या गलतियाँ की वजह से उसको छोड़ के मतलब गलत नहीं करके आना है। ओके। यहाँ पे आपकी पेपर जो अटेम्प्ट का मेथड होता है काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यही हम पिछले लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, एंड हम बीच में रुका हुआ है। ओके, वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंस अगेन गेट का जो है उसका टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है January 2 to 30, एंड ईएससी का भी बाद में शुरू हो जाएगा। आप ग्रैंड टेस्ट दीजिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग देंगे एंड आपको थोड़ा रियलिटी दिख जाएगा, आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एंड आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। अगर इसमें नंबर कम आ गया तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर बस रिवाइज कीजिए। आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कैसे गलतियाँ कर रहे हैं वो एनालाइज कीजिए, एंड उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज करते आगे बढ़ते जाइए। मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया था मेरा इतना अच्छा तो नहीं आता था रैंक। जब मेरा रैंक 41 आया था गेट पिछले साल का, तो उसमें जब मैं टेस्ट सीरीज देता था उसमें मेरे नंबर बनते थे 100 नंबर पे, अराउंड 70 to 75 नंबर बने थे। मैंने भी 5 टेस्ट सीरीज दिए थे, उसमें 3 टेस्ट में 70 to 75 बने थे, एंड एक टेस्ट में 80 क्रॉस किया था, एक टेस्ट में 75 to 80 क्रॉस किया। एंड रैंक भी रियलिटी में उतना रैंक आया, उतना रैंक वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता था। लेकिन आपको मत ये मत फिक्स होना कि आपको टेस्ट सीरीज में जितना रैंक आता है उतना ही वहाँ पे आएगा, ये नहीं सोचना। टेस्ट सीरीज आपको देना है क्योंकि आप कहाँ तक प्रिपरेशन, मतलब आप रिलेटिवली कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं। ओके। एंड एक और चीज़, आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे कैसे गलतियाँ हो रही है आपसे, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, उनको आप रेक्टिफाई करते जाना है, आपको प्रोग्रेस बढ़ेगा एंड आपके रैंक अच्छा होगा। मेरा जो टेस्ट सीरीज में रैंक आता था उससे काफ़ी अच्छा रैंक आया फाइनल एग्जाम में, क्योंकि मैं एग्जाम के बाद उसको एनालाइज करता था पेपर को, एंड वो सब मैंने एक जगह पे लिख लेता था, इस क्वेश्चन क्यों गलतियाँ हुआ, उसका रीज़न भी थोड़ा लिख लेता था। इन वो सब मैंने एग्जाम के पहले रिवाइज किया, एंड रिवाइज करके आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब मिस्टेक्स जब आप जो आप एग्जाम में करके गए हो वो सब फाइनल एग्जाम में रिपीट नहीं करना है। ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि द वे टू अटेम्प्ट द पेपर। ओके, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फाइनल डेज बिफोर द एग्जाम में। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, once again, boost your readiness for GATE, upcoming GATE 2022 in civil engineering with our top educators by joining in the All India mock test series by Unacademy. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करना, ईएससी का पेपर देख रहे हैं प्रीलिम्स का। सो हमने यूपीएससी की वेबसाइट से प्रीलिम्स 2021 पेपर, मतलब टेक्निकल पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में जो है उसमें 60% आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे एंड 40% ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। एंड एक और बात आपको ध्यान रखना है कि आप सीक्वेंशियली नहीं करना है, ईएससी पेपर जो होता है उसको सीक्वेंशियली मत कीजिए, आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आप इसमें क्वेश्चंस होता है पूरा 150 एंड आपका टाइम होता है 3 घंटे। अगर आप सीक्वेंशियली करते जा रहे हो, मतलब बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको भी पूरा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हो, तो आपके टाइम इतना मैनेजमेंट नहीं होता है, आप पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे। ओके, तो उसी का तरीका जो मैंने एग्जाम में इम्प्लीमेंट किया था, मेरा जो स्कोर जो है प्रीलिम्स में इस साल का वो काफ़ी अच्छा बना था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले क्लास में भी इस प्रोसेस को हमने फॉलो किए थे, एंड अराउंड 95-97 क्वेश्चन तक किए थे,
एंड उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, पूरा करके देखते हैं कितना टाइम लग रहा है हमको अगर खाली थियरिटिकल सॉल्व कर रहे हो तो। ओके, ओके, कल हमने 96 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। एंड आपको एक और बात नोटिस कर सकते हैं, प्रीलिम्स का पेपर जो होता है उसमें 4 सेट से डिवाइड किया जाता है। एंड इस 4 सेट्स में रैंडमली जंबलिंग नहीं होता है। प्रीलिम्स में आप ऐसा पैटर्न दिखेंगे कि एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन मतलब एक ही जगह पे दिख जाएंगे आपको। मान लो कि आपका सेट ये है एंड उसमें आपको शुरुआत में दिख रहा है फ्लूइड का क्वेश्चन। आपको पहला 15-20 क्वेश्चन जो भी है वो सब फ्लूइड का ही होंगे। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसी का सारा क्वेश्चन एक साथ ही दिखेंगे। ओके, अगर आप मान लो कि पूरा तैयारी नहीं करके गए आप, लेकिन आप कुछ सब्जेक्ट जो है जैसा सॉम एनवायरनमेंट सॉइल इंपॉर्टेंट होता है वो आप अच्छे से पढ़ के गए हो, तो आप पहले सीधा उस सेक्शन पे चले जाइए, उसका थ्योरी क्वेश्चंस उठा लिए या न्यूमेरिकल अगर आसान है तो वो कर लीजिए। ये जो मेथड है ये इन लोगों के लिए जो पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं। एंड पूरा सिलेबस में आपको 150 क्वेश्चन करना है, तो आप उसमें सिक्वेंशली नहीं कर सकते। आपको पहले करना है कि थ्योरी क्वेश्चन पेपर पूरा मतलब ग्लैंस करना है कि सारा मैटर जो है वो प्रिंटेड अच्छे से प्रिंट हुआ कि नहीं। उसी के साथ साथ आपको जो थ्योरी का क्वेश्चन जो है उनको मार्क करके जाना है। सो आप पूरा पेपर ग्लैंस करने के बाद आपको खाली थ्योरी का क्वेश्चंस आपने जो मार्क किया था उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है। ओके, न्यूमेरिकल शुरुआत में आपको छूना ही नहीं है, क्योंकि जब आपके मतलब थोड़ा बेसिक साइकोलॉजी होता है। आपके शुरुआत में 3 घंटे होते हैं, जब आप पहले क्वेश्चन जो भी करते हो आप बहुत आराम से करते हो। ओके, तो आप शुरुआत में न्यूमेरिकल से शुरू किया तो आप उसमें बहुत टाइम लगा लेंगे। मगर शुरुआत में एक ऐसा भी होता है कि आप आंसर निकालने के बाद उसको दोबारा भी चेक करते हो। मतलब शुरुआत के इनिशियल टाइम में आपको लगता है कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, एंड आपकी माइंड जो है वो पीछे आपको रिमाइंड करता रहता है फिर से चेक करो फिर से चेक करो ऐसा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप थियरिटिकल से शुरू करो, जल्दी भी हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है पेपर में 60% दैट बिलोंग्स टू थियरी ओनली। ओके, तो हमने ये बात पिछले क्लास में भी बोला था, एंड उसको हम लाइवली देख रहे हो। हर एक थ्योरी क्वेश्चन एंड उनको भी कैसे सॉल्व करना है आपको। थ्योरी में मेनली इसमें दिया जाता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, एंड उसको भी आप ब्लाइंडली शुरुआत से एंड तक नहीं पढ़ के सॉल्व करना है आपके। उसका ट्रिक होता है आपको पहले फर्स्ट लाइन पढ़ना है एंड उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ना है, उसके बाद ही आप स्टेटमेंट्स पे जाइए। ओके, इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप एक दो स्टेटमेंट पढ़ने से ही आंसर निकाल सकते हैं, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं होता है। ओके, तो दैट इज द मेन की पॉइंट इन द थियरिटिकल क्वेश्चन आल्सो, उसमें भी आप टाइम बचा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो हमने कल 96 क्वेश्चन तक किया है। हम उसके बाद जो भी थियरी क्वेश्चन है उनको भी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना टाइम लगा है एंड न्यूमेरिकल जो है उसको भी कैसे करना है। ओके, एंड आपका ये इसलिए बता रहा हूँ कि गेट के बाद आपका गेट का एक हफ्ते के बाद ही ईएससी का प्रीलिम्स भी है। तो अ, उसके लिए इतना टाइम नहीं है, आपको दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप ये सब चीज़ें इसमें देख रहे हैं वो आप टेस्ट सीरीज में इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब आदत बना लीजिए इसको, ताकि आपके आउटपुट जो है मैक्सिमम हो जाए। ओके, तो 97 क्वेश्चन है। ओके, आप पढ़ लीजिए, आप इसको शुरू करते हैं उसके बाद। ओके, इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ऑयलर्स इक्वेशन टू फाइंड क्रिटिकल लोड ऑफ द कॉलम। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट लास्ट लाइन पढ़ना है, उसमें क्या पूछा है इसे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसने बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट करेक्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको के बाद आपको करेक्ट को अंडरलाइन करना है। ओके, अब आप स्टेटमेंट्स पढ़ने में जाइए। ऑयलर्स इक्वेशन जो होता है दैट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग कॉलम्स
and based on the Euler's equation, load of the column is defined by pi square EI by L square. Okay, E हो गया आपका modulus of elasticity and I will be the moment of inertia of the section, and next L will be the effective length. Okay, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. क्रिटिकल लोड ऑन द कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सरल रिजिडिटी. फ्लेक्सरल रिजिडिटी का होता है ई इंटू आई को हम फ्लेक्सरल रिजिडिटी कहते हैं. तो इसने बोल रहा है कि लोड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सरल रिजिडिटी. सो दिस ऑप्शन इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट. उसके बाद आप ऑप्शंस में जाइए, वहाँ पे देखिए जिस जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट वन नहीं है उनको एलिमिनेट कर दीजिए आप पहले. तो आप नीचे जाके देखा है, वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा कि ऑप्शन सी एंड डी में स्टेटमेंट वन नहीं है, सो सी एंड डी नहीं हो सकता है. अब हम हमारे पास बचा हुआ है ए एंड बी. आप ए एंड बी देख रहे तो उसमें डिसाइड करने के लिए आपको 2 and 4 के स्टेटमेंट के थ्रू जज करना पड़ेगा. 3 स्टेटमेंट जो है वो इसमें दिया नहीं है, सो आपको 3 स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. आप बस नाउ वी आर डाउन टू जजिंग द आंसर बेस्ड ऑन 2 and 4 स्टेटमेंट ओनली. ओके, तो अब सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं. सेकंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहे हैं? क्रिटिकल लोड ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स अपॉन यील्ड स्ट्रेस. एक गलत है, क्योंकि आप फॉर्मूला में देख सकते हो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर है फॉर्मूला. तो उसमें यील्ड स्ट्रेस जो कि टर्म एफ है वो तो है ही नहीं, तो वो गलत है. तो आप ए बी में जो टू स्टेटमेंट दिया है उसको एलिमिनेट कर दिए. नाउ वी आर लेफ्ट टू ऑप्शन बी. सो दैट इज द आंसर. तो इस क्वेश्चन को हमने खाली 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने से ही ख़त्म कर दिया. ओके, एंड हमको 3-4 स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा. सो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्स्ट्रा 10-15 सेकंड जो भी है वो सेव हो गया. ओके, इस स्टेटमेंट्स को आपको कैसे करना है, पहले पहला लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, उसी के बाद आप स्टेटमेंट्स में जाइए. ओके, तो नेक्स्ट थियरिटिकल में चलते हैं. या नेक्स्ट 99, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं. क्या इसको शुरू करते हैं. 99 इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, अब लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. करेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड उसके बाद हम स्टेटमेंट में चलते हैं. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन. यस, दिस इज करेक्ट. तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए, वन ऑप्शन जो है आंसर में वन ऑप्शन होना चाहिए. तो इसमें उससे हम ऑप्शन ये दैट विल बी एलिमिनेटेड. नाउ वी आर लेफ्ट विथ बी सी एंड डी. ओके, एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में जाइए. शियर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट. ये करेक्ट है. शियर फोर्स इज गिवन बाय dm by tx. So that will define that shear force is rate of change of bending moment. तो ऑप्शन में टू बी स्टेटमेंट टू भी प्रेजेंट होना चाहिए. तो वहाँ पे ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली सी एंड डी. ओके, अब आप तीसरी स्टेटमेंट में जाइए. उसमें कह रहा है फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स टू चेंज इट्स साइन. ये भी करेक्ट है, क्योंकि फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम शियर फोर्स मस्ट बी ज़ीरो, या उसकी चेंज उसकी साइन चेंज जब होती है तब वो जीरो लाइन क्रॉस करते हैं, मतलब नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाती है जीरो के क्रॉस करते हैं. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. सो उसमें 1 2 3 तीन ही स्टेटमेंट्स है मैक्सिमम.
1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, पढ़ लीजिए एक बार इसको भी। Yeah, okay. Now let's go into the question. Consider the following statements. And next last line में जाइए, which statements are correct. Okay. तब आप statements में चलते हैं. Moment area method proves advantages in analyzing. Okay. Moment area method जो है that will be used for calculating the slopes and deflections at a point for statically determinate beams. Okay. ये पॉइंट आपको ये तो बेसिक डेफिनेशन होता है मोमेंट एरिया मेथड आप मतलब अप्लाई करने से पहले। एंड दिस कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर नॉन यूनिफॉर्म बीम्स आल्सो, बट बीम जो है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट होना चाहिए। ओके, अब पहला स्टेटमेंट में चलते हैं। कैंटिलीवर बीम जो है दैट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ओके, तो ऑप्शन वन इज कर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अब ऑप्शन में चलते हैं। ए ऑप्शन ए में वन प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में वन नहीं है, सो उसको एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी में वन प्रेजेंट है, ऑप्शन डी में वन प्रेजेंट है। तो नो वी आर लेफ्ट विथ ए सी एंड डी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। सिमेट्रिकली लोडेड सिंपली सपोर्टेड बीम है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है irrespective ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग। ओके, सो स्टेटमेंट टू इज आल्सो करेक्ट। तो अब हमारे पास बचा है ए सी डी को चेक करते हैं स्टेटमेंट टू प्रेजेंट है कि या नहीं। स्टेटमेंट ए में वन टू प्रेजेंट है, सो दैट कैन बी द आंसर। स्टेटमेंट सी में टू प्रेजेंट है, दैट कैन बी द आंसर। स्टेटमेंट थ्री में स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन डी में टू प्रेजेंट है, सो दैट कैन बी द आंसर। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आप हमको डिसाइड करना है थ्री फोर से। ओके, नो यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री दिया हुआ है फिक्स्ड बीम जो है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो जब हमारे जो ऑप्शंस बचा हुआ है उनमें से हम उन ऑप्शंस में स्टेटमेंट थ्री जिसमें है उनको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन ए में स्टेटमेंट थ्री नहीं है, सो दैट कैन बी द आंसर। ऑप्शन सी में स्टेटमेंट थ्री है, तो दैट कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन डी में स्टेटमेंट थ्री नहीं है, so that can also be the answer. So अब now we are left with A and D only. अब now we will go to the statement 4. Next, continuous beam. Continuous beam is also an indeterminate beam, so 4 cannot be the answer. So statement 4 cannot be the answer. So अब अपना आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, तो स्टेटमेंट ओनली वन एंड टू आर ओनली करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉट वन क्वेश्चन। Yeah, no, question number 101. Consider the following statements regarding continuous beam. Okay, a beam is said to be continuous beam if it is supported on more than two supports. ये ऑप्शन करेक्ट है। कंटिन्यूस बीम क्राइटेरिया होने के लिए मोर देन एटलीस्ट टू स्पैन तो होना चाहिए।
तो 2 स्पैन्स के लिए 3 सपोर्ट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी. सो फर्स्ट स्टेट सॉरी वो लाइन पढ़ने के बाद आपको लास्ट लाइन में जाना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसने करेक्ट पूछा है. सो हम अब स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे. इसमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूस बीम, बोल रहा है कि कंटिन्यूस बीम होने के लिए मिनिमम 3 सपोर्ट्स तो चाहिए, मतलब मोर देन 2 सपोर्ट्स तो चाहिए. तो यस, दैट इज करेक्ट. तो अब ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है उसमें 1 स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे. तो हम अब 3 ऑप्शंस में चूज करना है. तो अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 2 में कंटिन्यूस बीम इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. कंटिन्यूस बीम जो होता है दैट आर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट. ओके. हाँ, सो ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए एंड डी, क्योंकि ऑप्शन डी में स्टेटमेंट 2 दिया नहीं है. ओके. अब तीसरे पे चलते हैं. तीसरे पे दिया हुआ है द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सपोर्ट्स एंड आल्सो द नेचर ऑफ सपोर्ट्स. यस, ये भी सही है. अगर आपकी सपोर्ट्स जो है वो खाली 3 है तो आपकी इंडिटरमिनेसी आएगी 1 है. अगर आपकी सपोर्ट्स 4 है तो इंडिटरमिनेसी आएगी 2. जितना सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे उतना इंडिटरमिनेसी भी बढ़ता जाएगा. एंड नेक्स्ट, अगर आपकी फ्री सपोर्ट से जगह फिक्स्ड सपोर्ट्स आ गया तो वहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा रिडंडेंसी ऐड हो जाएंगे. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. इंडिटरमिनेसी डिपेंड्स अपॉन number of supports and nature of supports also. So 3 is correct. So 1, 2, 3, 1, 2 and 3 will be the answer. Option C. Okay. Next 102. ओके. 102 में कह रहा है कि स्टेटमेंट्स दिया नहीं है, खाली स्ट्राइट आंसर पूछ रहा है. तो इसमें कह रहा है इन केस ऑफ फ्लेक्सुरल टेंशन or flexural compression, the minimum length of bar which must be embedded into the concrete beyond any section to develop its full strength is termed as development length. Okay. तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्विस्टेड लेंथ फ्लेक्सुरल लेंथ तो नहीं है. बॉन्ड लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है. बॉन्ड लेंथ जब होता है कि उसकी shear force is equal to the axial tension in the bar. ओके. उसको उस लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. डेवलपमेंट लेंथ मतलब वहाँ पे आपको फुल फ्लेक्सुरल मोमेंट डेवलप होना है, उसकी कैपेसिटी जितना है उतना. तो दिस corresponds to the development. Option D will be the answer. आप 104 देखिए. यहाँ पे ऑप्शन जो है वो न्यूमेरिकल में दिया है, लेकिन ये जो है मतलब कोड से पूछ रहा है सीधा. ओके. The ultimate tensile strain in the tensile strain in steel is in the range of 0.12 to 0.2. ये स्टील का फेल्यूर रेंज होता है थोड़ा. यहाँ तक खींचने के बाद अल्टीमेट स्ट्रेन मतलब पूरा टूट जाएगा स्टील. इसका रेंज होता है 0.12 टू 0.02. अपना वो जो होता है 0.002 वो आपकी ईल्ड स्ट्रेन की वैल्यू होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन की नहीं होता. ये कुछ लॉजिकल आंसर नहीं है, आपको कोड के थ्रू पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है तो सीधा टिक करके आगे जब बढ़ना है आपको, नहीं तो छोड़ देना है. आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बचा है. ओके. नेक्स्ट थ्योरेटिकल आया अपना 105.
तो 105 देखते हैं, इसमें कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ओके, अब लास्ट वन पढ़ लीजिए, उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपका अंडरलाइन करना है स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड लास्ट लाइन में करेक्ट जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। अब उसके बाद स्टेटमेंट में चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू एनालाइज फुल्ली एनालाइज स्ट्रक्चर। ये सही है। आपकी जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर होता है उसमें आप सीधा मोमेंट इक्वेशन या वो लगा के पूरा फोर्सेस और मोमेंट का आई पे भी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। तो अब नीचे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, अब ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन और द फोर्स इन एनी मेंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, ये भी सही है क्योंकि जब इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आप कैलकुलेट करते हो रिडंडेंट फोर्स या मोमेंट, उसमें आपको डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का इक्वेशंस जो होते हैं उनको बैलेंस करते हो। ओके, देर यू आर यूजिंग द डिफ्लेक्शंस, वहाँ पे आपको इलास्टिक मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब यूज़ करते हो। तो वो केस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो इसने भी वही कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट्स। मटेरियल कंपोनेंट मतलब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का ज़रूरत जो पड़ती है वो नहीं पड़ती डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। सो स्टेटमेंट टू इज आल्सो करेक्ट। तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए एंड बिटवीन ए एंड सी ऑप्शन। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। थर्ड में कह रहे हैं द बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन और द फोर्स इन एनी मेंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द कंपोनेंट। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़रूरत कुछ नहीं आता। सो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो अपना सारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सिंपली 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, 109th है नेक्स्ट theoretical क्वेश्चन। तो ओके, इसको करते हैं 109। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मेरिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन स्ट्रक्चरल स्टील। ओके, ये हो गया। अब लास्ट लाइन पढ़ना है आपको। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड ऊपर जो है उसमें मेरिट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन स्ट्रक्चरल स्टील। ओके, ये बोल रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर्स का जो यूज़ करते हैं उनका पॉजिटिव्स क्या होता है। अब स्टेटमेंट्स देखते हो सही क्या नहीं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्ट्रक्चरल स्टील हैज़ हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट एज कम्पेयर टू द आरसीसी। ये बिल्कुल सही है। अ, आप जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो स्टील बीम और स्टील कॉलम और कंक्रीट कॉलम का साइज कितना होता है। ओके, उसी से आपको पता चल जाए कंक्रीट कॉलम का जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टील कॉलम का जनरली कम होता है। सो उसी से आपको पता चलेगा स्टील विल बी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द आरसीसी। सो पहला स्टेटमेंट अपना सही है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट द स्टील मेंबर्स आर स्लेंडर और स्मॉल एज कंपेयर टू द आरसीसी मेंबर्स। ये भी बिल्कुल सही है। स्टील का वही कॉलम्स या बीम जो होते हैं जनरली स्मॉल साइज में होते हैं आरसीसी की बीम्स या कॉलम से फॉर रेसिस्टिंग द सेम स्ट्रेंथ। ओके, वो भी सही है। नेक्स्ट थ्री द स्टील स्ट्रक्चर्स आर यूजुअल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस एंड एयरप्लेन हैंगर्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। सो अपना ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 1 2 3 1 2 and 3 आर करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट 112 हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके पहले तक स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सॉम का एक साथ आया था क्वेश्चंस, एंड अब आर स्टील स्ट्रक्चर्स का एक साथ आना शुरू हुआ। ऐसा ही हर साल ये पैटर्न फॉलो किया इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो रिसेंटली जो भी पेपर आ रहा है उसका यही पैटर्न आता रहता है। 60% विल बी योर थियरेटिकल एंड 40% विल बी न्यूमेरिकल, एंड एक सब्जेक्ट का एक ही जगह पे पूछा जाएगा सारा क्वेश्चंस। ओके, तो ये सब आप नोटिस कर सकते हो। ओके, अब 112 पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट 10 पढ़ लीजिए पहले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बैटन प्लेट्स। ओके, बट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बैटन प्लेट्स अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद लास्ट लाइन पे जाइए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद हम स्टेटमेंट 1 पे चलते हैं। ओके, 1 में कह रहे हैं these normally consists of flat plates connecting the components of built up columns in two parallel planes। ओके, ये बिल्कुल सही है। बैटन्स जो होता है वो जनरली फ्लैट प्लेट्स होता है, लेसिंग जो होता है वो एंगुलर मेंबर्स होते हैं, या वो प्लेट्स, लेसिंग जो है एंगुलर मेंबर्स या प्लेट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैटन्स जो होता है वो जनरली फ्लैट प्लेट्स होते हैं। ये ऑप्शन सही है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रायक्सियल लोडिंग। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि बैटन्स आर यूज्ड फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग एंड स्मॉल लोडिंग्स। आपको बायएक्सियल एक्सियल लोड और मूवमेंट जब आते हैं तब आपको लेसिंग यूज करना पड़ेगा, बैटन्स नहीं यूज कर सकते। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, आपको स्टेटमेंट 3 पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस में देख लीजिए, बस एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि उसमें स्टेटमेंट 2 नहीं है। तो आंसर ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पूरा मत पढ़ना, जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो उसको पूरा पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आप खाली आपकी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप 5-6 स्किप कर दिया तो उसका जितना स्किप हुआ टाइम है वो सब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से करना पड़ेगा ईएससी प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके लिए आपको हर एक माइन्यूट टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब 112 हो गया, नेक्स्ट थियरेटिकल 113। तो ओके, क्वेश्चन में चलते हैं। आपको फर्स्ट पहला लाइन पढ़ना है, मतलब पहला पॉइंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड to the design of tension member with single structural shapes and plates। आपको अंडरलाइन करना है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर विथ सिंगल स्ट्रक्चरल शेप्स एंड प्लेट्स। एंड लास्ट में जाइए, उसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट 1 में चलिए।
द कॉमन सिंगल स्ट्रक्चरल शेप्स आर एंगल सेक्शंस, टी सेक्शंस एंड चैनल सेक्शंस। ये बिल्कुल सही है। टेंशन मेंबर्स का जो टेंशन मेंबर्स होता है जनरली एंगल शेप होता है, टी शेप होता है एंड चैनल शेप हो सकता है। सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड वन, सिंगल एंगल्स आर नॉट यूज्ड फॉर ब्रेसिंग फॉर लाइट ट्रस टेंशन मेंबर्स। ये स्टेटमेंट आपके गलत है, क्योंकि ब्रेसिंग जब होता है वो जॉइंट्स पे प्रोवाइड किया जाता है फ्रेम्स के, ताकि वो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, मतलब लैटरल मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सके एंड वाइब्रेशंस जो है इफेक्टिवली ग्राउंड को कैरी कर जाए। ओके, लाइट ट्रस मेंबर्स जो है उसमें सिंगल एंगल्स एंड फ्लैट फ्लैट मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं ब्रेसिंग के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि उसमें स्टेटमेंट 2 नहीं है। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट थियरिटिकल क्वेश्चन है 114। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ तक आपका स्टील का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है। एंड आप इसमें एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एडवांटेजेस ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइन करना है एंड नेक्स्ट आपको लास्ट लाइन में जाना है, वहाँ पे देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट को भी अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड ए फीलिंग ऑफ फ्रीडम। ये बिल्कुल सही है। आप गुड ऑर्गेनाइजेशन का नेचर में पॉइंट तो आता ही है। एंड नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। यस, ये भी सही है। गुड ऑर्गेनाइजेशन में ओरिजिनलिटी जो है उसका इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड नेक्स्ट, इट मेक्स द कम्युनिकेशन ईजियर। यस, ये भी सही है। आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शंस में दे सकते हो। तीन ही स्टेटमेंट तक दिया हुआ है आंसर्स में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दैट इज 1 2 3 आर करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस ऐसा देता है, सिंपल जनरल सेंस में दे देता है आपको, उसके लिए सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट थियरेटिकल है 116। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, अब लास्ट लाइन देखते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट लिखा है उसको अंडरलाइन कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ वेरियस कंडीशंस अंडर विच स्ट्रक्चर में सीज टू फुलफिल इट्स इंटेंडेड फंक्शन। ओके, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन आप जनरली वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में जनरली लेते हो, आपका एक ही कंडीशन होता है, वही लोड क्राइटेरिया, दैट्स इट। तो वन इज रॉन्ग। ऑप्शंस में वन का निकाल सकते हैं, ऑप्शन ये हो गया अपना एलिमिनेट। एंड नेक्स्ट, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन द स्ट्रक्चर विल डायरेक्टली टेक इनटू कंसिडरेशन द वेरियस रिलेवेंट मोड ऑफ फेल्यूर। नहीं, इसमें खाली हम लोड फेल्यूर की बात करते हैं, इसमें सर्विसबिलिटी फेल्यूर इन सब का नहीं होता है इंपॉर्टेंस। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग।
एंड अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, स्टेटमेंट वन के थ्रू ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। तो नो वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन डी। आपको थ्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट थ्री जो है वो 4 लाइन का दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ने बनने में ही आपको 10 सेकंड लग जाएगा एंड 5 सेकंड इंटरप्रेट करने में लग जाएगा। तो 15 सेकंड वेस्ट हो जाएगा उसको आप पढ़ लिया तो। सो आप यहाँ पे डिसाइड करना है, वन टू एलिमिनेट हो गया, द आंसर विल बी ऑप्शन डी। उसके बाद आपको आगे पढ़ना है। ओके, एंड ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि आप पहले लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, उसके बाद आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। अगर आप पहले आपको स्टेटमेंट्स पढ़ लिया एंड आप जब आप लास्ट लाइन में आते आते ही आपको पहला जो स्टेटमेंट्स पढ़े वो आप भूल जाएंगे, फिर वापस आप ऊपर जाके फिर से पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आपको फालतू में 20 सेकंड और कुछ वेस्ट हो रहा है। सो ये प्रोसीजर फॉलो करना फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। तो ओके, 117 में कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। ओके, एंड अब लास्ट लाइन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। अब अगर आप पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, कभी कभी आपको नॉट करेक्ट पूछा जाएंगे। सो इसके लिए कह रहा हूँ, लास्ट लाइन में जो पूछता है फाइंड विच आर करेक्ट या नॉट करेक्ट, उसको अंडरलाइन कीजिए आप। और उसके बाद पहले लाइन को भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, आपको क्वेश्चन अगर वापस ग्लैंस किया तो आपको सीधा वो दोनों पॉइंट मतलब अंदाजा होना चाहिए, मतलब क्या कह रहा है आपको। एक ग्लैंस में ही आपको मतलब एनालाइज होना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड तो ये आंसर में नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट पूछ रहा है द वर्किंग स्ट्रेस इन द मेंबर शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट टू भी आंसर में नहीं हो सकता। एंड स्टेटमेंट थ्री द परमिसिबल स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू द यील्ड स्ट्रेस, ये गलत है। इसकी इनवर्स मतलब इसकी उल्टा होता है, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इज रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो थ्री इज नॉट करेक्ट। तो अगर आप ऑप्शन पे देख रहे हैं तो ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाइज द स्टेटमेंट। मगर आपको फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है उसको वो 3 लाइन में दिया हुआ है, उसको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आप सीधा बी मार्क करना है एंड आगे बढ़िए। नेक्स्ट 119।
ओके 119 देखते हो, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर लोकल कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। ओके उसके बाद लास्ट में पढ़ लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। फिर हम पहला पढ़ेंगे, लोकल सेक्शन फेल्यूर इज यूजुअली एनकाउंटर्ड इन केस ऑफ शॉर्ट स्टॉकी बीम कॉलम्स विद relatively smaller axial compression ratio and beam columns bent in river curvature। इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सो अब इसको देखते हैं कि कुछ एलिमिनेशन करके कर सकते हैं। ओके फिर हम स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एंड सेक्शन रीच्ड अंडर कंबाइंड एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग गवर्न्स द फेल्यूर। या स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लोकल फेल्यूर होने के कैपेसिटी जो है वो जब खत्म हो जाती है, जब ये जो कंबाइंड फोर्स होता है एक्सियल एंड बेंडिंग, उसके वजह से फेल्यूर गवर्न होती है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 3 पे चलते हैं। The strength of the section may be governed by plastic buckling of plate, okay, plate elements in case of plastic compact and semi compact section। स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है, क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रेंथ जो हम मतलब यूज करते हैं वो प्लास्टिक और कंपैक्ट सेक्शन में यूज करते हैं, सेमी कंपैक्ट सेक्शन में नहीं यूज करते। ओके सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो ओनली ऑप्शन ये सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, मतलब खाली यही ऑप्शन है उसमें, उससे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ओके सो ऑप्शन ये। तो नेक्स्ट आया अपना 121। वन पॉइंट वन पूछ रहे हैं, सिरप एरिया इन एक्सेस of that provided for shear and torsion is provided along each terminated bar over a distance from cutoff point equal to, ये सीधा कोड का क्वेश्चन है। ये जनरली एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है shear and torsion केस में। that will be 3/4 the effective depth of the member। ओके अगर आपके आ गया तो सीधा टिक करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ लीजिए सिंपली, टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट 122। या 122 देख लीजिए। Which of the following is not a type of mortar? मोर्टार जो होते हैं that is made up of cement and sand। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो सीमेंट और सैंड, सैंड भी जो है फाइन एग्रीगेट से, मतलब सीमेंट सैंड पेस्ट, मोर्टार भी फाइन होना चाहिए। ओके पहला है लाइम सोप की मोर्टार, यस ये पॉसिबल है। या बाइंडिंग मटेरियल आप कभी कभी सीमेंट यूज करते हैं, कभी कभी लाइम, या कभी कभी दोनों यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट ऑप्शन में भी बोल रहे हैं सीमेंट सैंड मोर्टार, यस दिस इज ऑल्सो आंसर। ऑप्शन सी कह रहे हैं, सॉरी दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी कह रहा है सीमेंट स्टोन चिप्स मोर्टार। इसमें देख सकते हैं कि इसमें फाइन एग्रीगेट ही नहीं है, एक कंक्रीट जैसा बन जाएगा, मोर्टार नहीं है। सो सी इज द ऑप्शन, दैट इज नॉट द टाइप ऑफ मोर्टार। नेक्स्ट 124। ओके क्वेश्चन में चलते हैं। इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम फॉर गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म्ड बार्स।
आप अगर कंक्रीट में बॉन्ड स्ट्रेस के चैप्टर पढ़ते हो, ये फंडामेंटल्स में आता है। जब आप माइल्ड स्टील की जगह HYST बार्स यूज़ करते हो, तब आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है दैट विल इंक्रीज बाय 60%। तो ऑप्शन होता है इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट 125 पे चलते हैं। या ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। द सेफ लोड कैरिड बाय हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम मीस। ओके, कॉलम में जब आप नॉर्मल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, मतलब लैटरल टाइप सिंपली, एंड उसके आप रिलेटिवली कंपेयर करते हो हेलिकल रेनफोर्समेंट, उसमें आप देख सकते हैं कि 5% ऑफ द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। जब आप फार्मूला यूज़ करते हो PU का जो भी है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने, तो आप 1.05 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, वो डिफाइन करता है 5% इज इंक्रीज। ओके, तो हियर ए विल बी द आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है RCC में कॉलम स्ट्रक्चर से। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट थियरेटिकल है 126। ओके, 126 करते हैं। नॉमिनल कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू। नेक्स्ट आपको लास्ट लाइन देखना है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, अब पहले में चलते हैं। रेनफोर्समेंट नॉमिनल कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट अगेंस्ट करोजन। ओके, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्रोवाइड शियर रेसिस्टेंस, ये गलत है। हाँ, आप कंक्रीट शियर में देख सकते हो, शियर आपकी रेनफोर्समेंट है, टॉप से रेनफोर्समेंट तक एग्जिस्ट करती है, एंड रेनफोर्समेंट के नीचे जो पोर्शन होता है कंक्रीट का, इफेक्टिव कवर, पूरे इफेक्टिव कवर में जीरो मानते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उसमें टू को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ सी एंड ए। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट रेनफोर्समेंट अगेंस्ट फायर रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल सही है। फायर रेजिस्टेंस से भी प्रोवाइड करते हैं, वाटर से, मॉइस्चर एंड फायर रेजिस्टेंस उनसे भी। तो 3 होना चाहिए। सो अपना ऑप्शन हो गया सी, 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स ओनली। ओके, नेक्स्ट 127 क्वेश्चन जो है, ये भी सीधा डायरेक्ट कोड से पूछा है। इसके लिए भी आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। इन ये स्लैब डिजाइन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स टू द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब शुड नॉट बी मोर देन 1/8। ओके, मैक्सिमम डायमीटर जो प्रोवाइड होता है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू D/8। जो D होता है इफेक्टिव थिकनेस नहीं है, ये टोटल थिकनेस माना जाता है। सो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट विल बी टोटल थिकनेस। ये यहाँ पे आपको थोड़ा घुमा के दे सकता है, मतलब कभी स्टेटमेंट की वजह से पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में दे सकता है कि इफेक्टिव थिकनेस या टोटल थिकनेस। सो आप इस पॉइंट्स पे आप थोड़ा स्ट्रेस कीजिए, मतलब क्लियरली देख लीजिए किससे बात कर रहे हो। ओके, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1/8। ये सीधा कोड का सवाल है, आपको क्लास में पढ़ा जाएंगे, शुरुआत में ही आपको दिख जाएगा ये। नेक्स्ट थ्योरी अपना 128।
To prevent the cracking of edges, the corners in the two-way slabs are provided with torsion reinforcement. Torsion reinforcement जो है, that will be provided at the four corners of the slab if it is restrained from four sides. Okay. कितना प्रोवाइड किया जाता है? That will be 3/4 of the reinforcement in short span in 4 layers. ठीक है, वो आपको भी क्लास में पढ़ा जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, तो ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट 129 नेक्स्ट थियरेटिकल. इस 129 देखते हैं. क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शीयर इन केस ऑफ आइसोलेटेड फूटिंग डिजाइन EZ. टू वे शीयर मतलब होता है पंचिंग शीयर. तो आप देख सकते हैं जब आप मोमेंट के लिए डिजाइन करते हो फूटिंग का, तो द क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट फेस ऑफ द कॉलम. एंड अगर आप वन वे शीयर के लिए डिजाइन करते हो, द क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट D डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम. एंड आप क्रिटिकल टू वे शीयर के लिए डिजाइन करते हो, तब आप क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट ए डिस्टेंस D/2 ऑफ कॉलम इन ऑल साइड्स. ओके, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. ओके, ये भी आपको तुरंत बन जाएगा, आपको क्लास में पढ़ा देंगे, बेसिक है. नेक्स्ट 130, accepted relation between thread and razor in case of staircase. ओके, स्टेयरकेस में आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आप एक दो क्वेश्चंस किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं राइजर जो है दैट विल बी अराउंड 150 mm एंड थ्रेड जो है दैट विल बी अराउंड 250 mm. इसमें आपको क्राइटेरिया कुछ दिया जाएंगे केसेस, राइजर कितने रेंज में होना चाहिए, थ्रेड कितने रेंज में होना चाहिए. एंड नेक्स्ट एक और क्राइटेरिया होता है कोड का, 2 इंटू राइजर प्लस थ्रेड विल बी अराउंड 550 to 600 mm. तो अपना आंसर होगा बी, 2 राइजर प्लस थ्रेड. अगर आप नोट्स पढ़ के गए तो आप सीधा टिक कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है. ओके, आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं सबको अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं छोड़ के आना है. ओके, तो नेक्स्ट अपना थ्योरी है 131. क्या हो गया इसमें, कह रहे हैं लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट. यस, प्रीस्ट्रेस इज रिलेटेड टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट. नेक्स्ट श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, नेक्स्ट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. यस, ये ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर. प्रीस्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. अगर आप प्रीस्ट्रेस के कुछ सवाल किए हो तो गेट के लिए या प्री के लिए, में आप देख सकते हो कि जब आप कैलकुलेट करते हो स्लिपेज के वजह से, उसके लिए आप करते हो कि जो टेंडन की वजह से कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से आपको उस लोकेशन पे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस पड़ रहा है. ओके, वहाँ पे टेंडन की स्ट्रेस, उसके ऊपर आप पूरा सरफेस एरिया एंड और वो भी डिवाइड करेंगे रेश मॉड्यूलस को भी. वहाँ पे आपको टेंडन्स का फोर्स यूज करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं यूज करते. अगर आप फॉर्मूला से एक बार ग्लांस किया तो उसमें आपको दिख जाएगा, आप कहीं पे भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं यूज करते. तो द आंसर इज डायरेक्टली सी. नेक्स्ट 132 है.
या 132 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द डिसएडवांटेज ऑफ पोस्ट टेंशनिंग मेथड। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज लेस एज कंपेयर टू द प्री टेंशनिंग मेथड। ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, सो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी कह रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग मेथड इज कॉस्टली एज कंपेयर टू द प्री टेंशनिंग मेथड। यस, ये इसकी डिसएडवांटेज है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। आपको सी डी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अब यहाँ पे ही कंफर्म हो गया। इसका ऑप्शन है बी, आपको हो गया। नेक्स्ट आप सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। 133 है। Yeah, 133. What is the main limitation of the bar chart? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है इट डज नॉट हेल्प इन मटेरियल एंड लेबर प्लानिंग। ये इसके डिसएडवांटेज है। आगे भी बढ़ते हैं। इट डज नॉट शो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। नहीं, ये एक्टिविटीज को दिखा देते हैं लेकिन लिंकअप नहीं करते। ओके, ये भी नहीं है। एंड इट डज नॉट इंडिकेट क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट। या दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। यहाँ पे एक्टिविटीज़ का इंटर रिलेशनशिप नहीं होता, तो उसकी वजह से हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द बार चार्ट। सो आवर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट अपना है 134। यहाँ इसमें पूछ रहे ग्रेडर्स आर नॉट सूटेबल फॉर लेवलिंग ऑफ अर्थवर्क। यस, इसके लिए सूटेबल है। ग्रेडर का काम होता है लेवल करना, मतलब ग्रेड का मतलब यूनिफॉर्म लेवलिंग। ओके, नेक्स्ट कटिंग डिचेस। यस, थोड़ा थोड़ा डिचेस भी कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट वर्किंग इन स्टीपर स्लोप। As graders are allowed in working are suitable for working on steeper slopes also. ऑप्शन डी आ गया हेवी एक्सकवेशन। नहीं, ग्रेडर्स हेवी एक्सकवेशन के लिए सूटेबल नहीं होते, तो ऑप्शन डी विल बी दी आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 135। जो 135 क्वेश्चन में कह रहे हैं द लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक इज। लाइन ऑफ बैलेंस जो होता है दैट विल बी यूज्ड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑपरेशंस। सो दैट मीन्स रिपीटेटिव एक्टिविटीज। सो इससे हम कह सकते हैं ये मॉडिफाइड बार चार्ट ए नहीं है, ऑप्शन बी प्लानिंग ऑफ रिपीटेटिव एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो अगर आपको मास कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं कुछ, मतलब सेम तरीके का हाउसेस बना रहे हैं एक जगह पे ऐसा, उसमें लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक जो है यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट थ्योरी है 136। एंड यहाँ पे देख सकते हो आरसीसी खत्म हो गया एंड आप शुरू हो गया कि लगातार क्वेश्चन आपका सीपीएम एंड पर्ट से पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स आपके काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप उनसे शुरू करना चाह रहे हो तो आप पिक कर सकते हो। 150 क्वेश्चंस में एक जोन ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही दिया जाएंगे, तो आप सीधा उसके जोन पे जाइए, पहले अटेम्प्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ेगा। नेक्स्ट आप बाकी में आ जाइए। ओके, नेक्स्ट है 136।
Yeah, ये देखते हैं 136 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग नेटवर्क। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए नॉट करेक्ट को। ओके, यहाँ पे देख देख सकते हैं नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल इट्स टेल इवेंट हैज अकर्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट बी एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, ये भी सही है। आप जब एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करते हो उसमें देखते हैं कि आप हर एक इवेंट को अलग अलग नंबरिंग देते हो। नो टू इवेंट्स आर नंबर्ड सेम, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी लेंथ ऑफ एरो शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द टाइम कंज्यूम्ड बाय द एक्टिविटी, ये गलत है। जब आप लेंथ ड्रॉ करते हो वो आपको बस लिंकिंग के लिए ड्रॉ करते हो, उसका साइज जो होता है एरो का वो कुछ नहीं डिफाइन करते हैं। ओके, बस वो रिलेशनशिप डिफाइन करता है और टाइम या किसी का कुछ उसका डायमेंशंस किसी का भी नहीं डिफाइन करता। सो सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो मतलब सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 137। ओके, 137 the AON system of network completely eliminates the use of dummy activities। यस, ये बिल्कुल सही है। आपको एक्टिविटी और नोड डायग्राम में डमीज कुछ नहीं दिखेंगे। ये इसकी एडवांटेज होता है एक। तो ऑप्शन यही से करो, आपको बाकी पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बढ़िए आप सीधा। नेक्स्ट है 138। ओके, 138 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स allows the amount of the reimbursement to increase if contractor cost increases। ओके, में देख सकते हैं आप आंसर होगा कॉस्ट प्लस परसेंटेज फी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस पे क्या होता है कि आप जित प्रोजेक्ट में कितना कॉन्ट्रैक्टर का पैसा लग रहा है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज उसको दिया जाता है। ओके, अगर आप उसके कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो सो उसका पेमेंट का कॉस्ट भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनेट के थ्रू। सो द ऑप्शन विल बी डी। ओके, नेक्स्ट थियरेटिकल है 140। नेक्स्ट द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड। प्लिंथ एरिया जो होता है बिल्डिंग का उसमें आपकी पूरा फ्लोर एरिया इंक्लूडेड होता है, मतलब आपके घर के अंदर का एरिया एंड बालकनी का एरिया। नेक्स्ट आपकी सैनिटरी इंस्टॉलेशन जैसा सेप्टिक टैंक वो सब भी है तो उसका एरिया भी इंक्लूडेड होता है, लिफ्ट एरिया वो सब कॉरिडोर सब इंक्लूडेड होता है। एंड नेक्स्ट कैंटिलीवर्ड पोर्चेस होता है, ये इंक्लूडेड नहीं होता। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट थियरेटिकल क्वेश्चन है 141।
ओके 141 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ये दिया गया है the circulation area of any floor includes entrance halls, yes ये correct है। ऑप्शन बी floor area of building includes area of sills of doors and other openings ये गलत है। फ्लोर एरिया जो है उसमें आपके अंदर के पेरीमीटर का एरिया काउंट किया जाता है, उसमें डोर एरिया वो सब नहीं आते। सो ऑप्शन बी, सो बी जो है दैट इज द आंसर, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। ओके ये आपको बिल्डिंग्स कोड में इस उसमें कहीं आएगा, एक कॉर्नर टॉपिक है कुछ सीपीएम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, ये बहुत लोग नहीं करेंगे, आप छोड़ सकते हैं। एंड आप बहुत सारे क्वेश्चन है 150 में आप कुछ 120 भी अटेम्प्ट किया तो उसका आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। ओके तो एक क्वेश्चन के लिए आप चिंता मत करना, आप मतलब कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाइए, आपको कहीं मतलब डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कोई और कर देगा, नहीं वो नहीं करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ओके आपको हर एक क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ईएससी प्रीलिम्स का मतलब स्कोर करने के लिए वो एक मेन फॉर्मूला है। नेक्स्ट थियरिटिकल है 142। Okay, 142. Consider the following statements regarding the advantages in line or military organization of management technique. Okay, अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसमें कह रहे हैं which of the following statements are correct. Okay, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसका मैनेजमेंट होता है, डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को। ओके तो पहला स्टेटमेंट है द कमांड एंड कंट्रोल इज वेरी इफेक्टिव, यस ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट टू इट इज़ सिंपल टू वर्क एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द एम्प्लॉयज, यस ये भी सही है। आपको एक पर्टिकुलरली थिंग फॉलो करना होता है मतलब डिसिप्लिन से। नेक्स्ट थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑल लेवल्स आर डिफाइंड एंड फिक्स, नहीं ये गलत है, हर एक लेवल पे वैरी करता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं होता है। एंड नेक्स्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड, यस इसका चेंजेस नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रिजिडली होता है, उसका मैनुअल हो सब। तो अपना ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखते हैं 143। एंड 43 देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 प्रोजेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन एंड रिलेवेंस, यस ये इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट लेवल्स एंड सिक्योरिटी, यस ये भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट थ्री मेजरमेंट्स ऑफ रिस्क इम्पैक्ट्स, यस ये भी इंक्लूडेड होता है। सो अपना ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बस आपको पहले वही इसी तरीके से करना है, आपको बस थ्योरी का क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है एंड आप उनको ही अटेम्प्ट करना है शुरुआत में। आपको मान लो कि 1 and 1.5 आवर में आपका 50% ऑफ द पेपर खत्म हो जाएगा। ओके अगर आप 90 क्वेश्चन है एंड अगर आप हर क्लास अटेंड किया है एंड नोट्स पढ़ के गए हैं आप अच्छे से एंड प्रीवियस ईयर भी आपने सॉल्व किया है, सो आपको अगर 90 क्वेश्चंस अराउंड दिखेंगे थ्योरी क्वेश्चंस, उसमें से आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे अगर पेपर एवरेज आया तो। अगर मुश्किल आए तो आप उतना रिलेटिव अच्छा ही स्कोर करेंगे थ्योरी में। बस आप थ्योरी के बाद आप जितने अटेम्प्ट करोगे मैक्सिमम 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं टॉप 10% ऑफ द लोग जो होते हैं। अगर आपकी 75 क्वेश्चंस तो यहाँ पे मतलब आधा टाइम के अंदर ही आपने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया तो आपका बाकी जो आधा टाइम जो बचता है उसमें आपको खाली अराउंड 40% ही अटेम्प्ट करना है, तो आप उसमें आराम से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छा रहेगा न्यूमेरिकल में। ओके तो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोथ गेट एंड ईएससी प्रीलिम्स एज वेल। ओके थैंक यू।